हेलो सर, वेलकम टू द स्टार्टअप गट शो प्रेजेंटेड बाय बिस्किया। तो सर, बिजनेस की बात करने से पहले कुछ आपके बारे में जानना चाहूँगा कि एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसे रहा, फैमिली बैकग्राउंड क्या था और ये स्टार्टअप इकोसिस्टम में एंट्री किस तरह से हुई। Actually, I would like to introduce myself. I am a chartered accountant. मैं 2009 में क्वालिफाइड हुआ. So मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही फाइनेंस में, बजटिंग एंड टैक्सेशन इशू में रहा. I was fascinated by the businesses also because my father was a businessman. So एजुकेशन इंडस्ट्री में थोड़ा सा मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था बिकॉज शुरू से आई फील कि एजुकेशन इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारा काम होने वाला है. एंड वी आर आवर पॉलिसीज आर नॉट सो गुड for education sector, so we want to change the education system totally. We want to enlarge the students in the tier 2 tier 3 cities. We want students from the holy background areas which is very I think you can say that ki who has very hard earned money जो अर्न अच्छा नहीं कर पा रहे हैं because they want a good education system. So we want to bring that children in to bring the country. So this was the main aim to join the education sector. So in education sector, what we are doing is we are the first digital classroom of the India, and we are the first at a company of the Punjab. Very nice. We can proudly say that we are the first in the digital classroom. That's really great, sir. Yeah. So my educational qualification is first I have done my BCA. I am from Ludhiana, so I've done my BCA. From PCT college. It's a very well-known college back in Ludhiana. And after that I did an animation course from CDEC here in Mohali. And after that I had a various work, you can say. I have work experience. I worked for an advertising agency. I worked for software company. And I am very lucky that I got very good mentors in my life. And with that I also started my first venture also, which is the name as a multimedia institute, because I was very much into animation and things like that. And then after that I did I was saying that I had a multimedia institute. And after that I sold off that and got into the startup ecosystem because I was looking for a job, and I got after almost I think 8 years or 9 years of experience I got my first startup job. Right? तो startup job जब आप करते हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है because आप एक रेगुलर जॉब कर रहे हो ना, उसमें आपको बहुत tedious सेम काम करने को मिल रहा है. बट जब आप स्टार्टअप में जाते हो आप हर डिपार्टमेंट में हो, जब किसी और के लिए काम कर रहे हैं ऐसा लगता है बिल्डिंग फॉर समवन एल्स, बट जब स्टार्टअप में अपने काम कर रहे हैं तो अपने लिए कुछ क्रिएट कर रहे हैं. मेरा अपने स्टार्टअप से पहले भी एक स्टार्टअप का एक्सपीरियंस था जिसके लिए मैं हायर किया गया था एज अ प्रोडक्ट डेवलपर, बिकॉज मेरी जर्नी अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर होती थी. तो वहां पर मुझे स्टार्टअप में ये पता चला कि यू लर्न अ लॉट. आप जो कंपनी में है वो कंपनी में आप थोड़ा सा स्टिल हो जाते हो, एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो. लेकिन स्टार्टअप में आप कंफर्ट जोन में नहीं रहते हो, आपको हमेशा अपने आप को, अपने चैलेंजेस, अपनी बाउंड्रीज को एक्सपैंड करना होता है. सो वहां से आई थिंक मेरी जर्नी शुरू होती है टैब स्कूल की, बिकॉज वहां पर मुझे पता चलता है व्हेन आई विजिटेड फ्यू स्कूल्स इन दी रूरल एरियाज और टियर 2-3 सिटीज. वहां मुझे रियलाइज हुआ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में डिस्पाइट के गवर्नमेंट इतना कुछ कर रही है, गवर्नमेंट का इतना बड़ा बजट है, राइट, कि हमारे शहरों, छोटे छोटे कस्बों में, इवन स्मॉल सिटीज जहाँ वहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स हैं एजुकेशन को लेके, दैट समथिंग नीड्स टू बी डन, दैट क्वालिटी एजुकेशन इज रिक्वायर्ड, और क्वालिटी एजुकेशन के साथ डिजिटाइज भी होना चाहिए. Since then, he is doing research on the technology part since beginning. I know that he has done lots of hard work on the technology content because he understood that content is the king. So we are lacking in the support from the government also, because startup ecosystem is very good. It is next 10 years also very good for startup. But I feel that कि जो startup ecosystem है उसके अंदर जो कुछ challenges आते हैं in terms of finance, in terms of support, in terms of other supports from the government or recognitions, वो कहीं ना कहीं उसमें
I think we are feeling that कि we are not getting the right things. I think कहीं पंजाब पीछे रह गए. I wouldn't say कि ecosystem as such में lag कर रहा है, because I am from Punjab और हमने कंपनी जब बनाई थी अपने स्टार्टअप शुरू किए, इतने स्टार्टअप्स नहीं थे तब. आज शायद बहुत ज़्यादा स्टार्टअप्स है. इनफैक्ट देयर इज एन इनोवेशन मिशन पंजाब बिल्डिंग भी है. बट द पॉइंट इज दैट कि जब हमने शुरू किया था तो हम कोई भी नहीं था, मतलब हार्डली वन ऑफ फ्यू स्टार्टअप्स, राइट. और इवन एडटेक के अंदर भी आई स्टिल रिमेंबर जब हमने शुरू किया था, शायद बायजूस ने भी थोड़े से पहले शुरू किया था हमारे से. तो हमारा थोड़ा डिफरेंस इसलिए था, हम स्कूल्स को कैटर करते थे. जो बायजूस था वो सीधा डायरेक्ट टू स्टूडेंट्स B2C में है. तो हमारा जो जर्नी रही है वहाँ हमको आई पर्सनली फील दैट देयर इज बीन लैक इन द पंजाब. और पंजाब में उतना इकोसिस्टम इतना सपोर्टिव नहीं है. नो डाउट बहुत स्टार्टअप्स हैं और बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं. उसकी वन ऑफ एग्जांपल मैं देता हूँ. अभी हमने एजुकेशन मिनिस्टर हरजोत सिंह बैस को आई थिंक लास्ट मंथ वी अप्रोच देम थ्रू ईमेल एंड कम्युनिकेशन, अदर मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि वी वांट अ मीटिंग विद यू to turn around the Punjab education system, because Punjab government जो आई है वो इसी मुद्दे पे आई है कि we need to change the education system entirely as a Delhi model. We want every school to be digital school. जो content है, interactive content, they need everything. But जो system है ना, this is not sporty, but they are not even bothered to return back to us that कि we have given you appointment. So even you need the appointment, there is a very tedious process. We are using our relations also now. So get in touch with the government. So जो मेरे को लगता है कि पंजाब में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि एजुकेशन को जो टर्न अराउंड करने की प्लानिंग चल रही है, दे आर नॉट टेकिंग द डिसीजन ऑन द राइट स्टेप, बिकॉज ऑलरेडी 2.5 years हो गए हैं पंजाब में, पर वो जो रिजल्ट आना चाहिए वो एजुकेशन सिस्टम में पंजाब में नहीं आ पाया, बिकॉज वी आर द पंजाब फर्स्ट एडटेक कंपनी. सो वी वांट टू एसोसिएट विद द पंजाब गवर्नमेंट आल्सो. देन वी आर द फर्स्ट डिजिटल क्लासरूम कंपनी. So we are launching this product in soft launch. We already done. So we are on the right track of Byju's, because as good as Byju's is selling on the product only education material on the platform. Any teacher can come on the board and any student can learn from the teacher. So we can proudly say that we are the first digital classroom for skilled, non-skilled education, non-educational teaching, and anyone can come on our platform. Any teacher can come on our platform. They can easily learn the any course. So is our your startup is a combination of one finance guy and another technology or a marketing guy. I think it is required. It is required because the reason is that, see, as a person who comes from a technical background, I have no knowledge of finance, frankly speaking. Yes. तो कोई knowledge ना होने की वजह से you tend to lose out on finance part, right? ये आपको this is, you can say, an evolution in sense that कि आप धीरे धीरे सब कुछ सीखते हो. जब आप स्टार्टअप शुरू करते हो पहले आप प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान देते हो. जब प्रोडक्ट की सेल होने लग जाती है फिर द फाइनेंस कम्स इनटू द प्ले एंड यू डू लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स. दैट इज व्हाट स्टार्टअप इज. आप गलतियां करोगे पर वो गलतियों करके उससे सीखना भी है हमने. इवन सेल्स इज आल्सो बट बिग चैलेंज. अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे जैसे जैसे हम इस स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपनी कंपनी में आगे बढ़ रहे हैं, तो वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट सेल्स टीम इज अ बिग रोल इन द कंपनी आल्सो. So we are catering that need also. We have hired a Byju's North India head in our company, that on a payroll basis, that we need a good sale in the company. So we are working on the sales part now. So in finance part, because I am not aware about any technology, because you know that finance person we have learned everything. Yes. Accounting, finance, budgeting, planning. We know the how to get the IRR of the project over the period of 10 years, 20 years. If we are spending some money in the project, how it is viable project or not. If we get any investment, whether it is viable to be get investment or not. Yes. Because if product अगर वो एक उस पार्ट पे प्लानिंग नहीं है ना सर, you get the investment, you will not get successful. तो सक्सेसफुल होने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल क्या है कि बजट आपका उस हिसाब से प्लान हो कि वो इन्वेस्टमेंट से उसकी रिटर्न्स आए, मल्टीपल 5x 10x आप उसको यूटिलाइज करके निकाल सको. Then we are getting the successful. We are on the track on the getting the. We have validated a pitch deck from one of the founder of the who visited on the horses table, and we are going to plan a visiting one of the best
investors also in coming days. That's really So great. we are on the track of the financial part, going good. So let's see what is in the next in the God's bucket, what we reach, where we reach. So we are in the self-sustained model. We are currently at break-even also. Mhm. We are getting every expense getting from the sales. Currently we are at break-even. Not a profit-making company, but सर जैसे आपने next बताया year. कि गवर्नमेंट से सपोर्ट अभी भी हम लैग कर रहे हैं, तो Yes. होप ये मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंचे और कंसर्न्ड अथॉरिटीज इस पर एक्शन ले और हमें I जो hope needed so. support I है वो hope so. provide I hope for the best. I think Yeah. the government really needs to work on startup ecosystem, Yes, yes. not just in the education sector but in general. At least पंजाब की, ताकि और भी startups आए. पंजाब Motivation, right? Yes. पंजाब में पोटेंशियल जीवन है. पंजाब के हम फर्स्ट एडटेक कंपनी होके अगर हम लोग नहीं टच में आ पाए गवर्नमेंट के, कहीं या हम नहीं पहुंच पाए या वो हम तक नहीं पहुंचे, there is There is some a gap kind is of- there, na? But there is gap. There is definitely a gap, right? So gap कहीं ना कहीं bridge करना है. And I think जैसे startup throughout India हर states अपने अपने programs बना रही हैं. Mm. तो I think the government should involve startups not just in the private for the private things but also in developing government infrastructure also. तो उनको भी एक chance मिलना चाहिए to sort out the problems of the state. मैं एक और चीज ऐड करूंगा in on the part of finance. We have 3 competitors in our same field of area like Classmint, ClassPlus, Teachmint, and Yes. third is Next education. Next Education. And all of 3 companies are at $500 million valuation. And every company has taken the funding of 70 to 80 millions of fundings in 7 to 10 rounds or 15 rounds. one startup So- one I also heard that EduGorilla. Yes. Yes. that is Yeah, also- education. So you So, can see what is the market ecosystem size. है. See, आप जब कर्नाटका में जाते हो, when we talk about Bangalore, see, Bangalore में एक ecosystem है. ठीक है ना, you know lot of people because एक तो वहाँ स्टार्टअप से भी बहुत सारे हैं, Yes. सब एक दूसरे को जानते हैं. और फिर वहाँ नेटवर्किंग है, वहाँ हर चीज बहुत Support हाई system. एक सपोर्ट सिस्टम Technology है. support होता है. और वो कुछ अपने लोगों को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं. सो आई थिंक वहाँ जो की ग्रोथ है वो काफी एक्सपोनेंशियल है एज कम्पेयर टू मे बी इन अ पार्ट लाइक पंजाब, राइट. आप मुंबई में जाओगे वहां पे भी आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, हैदराबाद में जाओगे तो भी आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, इवन आई वुड से नॉर्थ में गुड़गांव दिल्ली में भी आपको मिल जाएगी. लेकिन इन अ पार्ट लाइक चंडीगढ़ अभी भी द एंटायर इकोसिस्टम इज एट अ वेरी स्मॉल नेसेंट स्टेज और वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा एंड होपफुली वो अच्छा So होगा. definitely we startups like us are working on that part and we will definitely make Chandigarh But also a good sir, ecosystem one thing for I want to startups. promise because we are on the camera that I definitely I given the promise to Harshpal also. We will make $1 billion company. That's it. And this will be the first company from the Punjab. We will become $1 billion company. It will become. It is a matter of time. Hope your Whether it words is coming come true, 2-3 sir. years, whether it All come the 5 best years. for that. It is depend upon time. Matter of time. So sir, what are you doing at your startup School Tabs and what is the ideology behind this edtech company and what inspired you for working on this idea? So the name of the startup is Tab School, and the idea behind this is like मैंने थोड़ा इंट्रोडक्शन में दिया कि जब I was traveling, मैं ट्रैवल कर रहा था, जिस स्टार्टअप के साथ पहले मैं काम करता था उनका आइडिया ये था कि हमने फार्मर्स को हेल्प करना है, राइट. तो बिकॉज उसका फाउंडर जो था एक ब्रिटिश फाउंडर था, बट था वो इंडियन बट ही वाज ब्रिटिश. सो ही मेड मी एंड वन ऑफ माय कॉलीग ट्रैवल इनटू द tier 2-3 cities, राइट. तो वो क्या था, वो प्रॉपर रिसर्च करके प्रोडक्ट बनवाते हैं. तो उस टाइम पे पता चलता है आपको जब आप मिलते हो कि आप, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैं लुधियाना से थोड़ा आगे मेरा कॉलेज है बद्दोवाल में, वहाँ पर एक स्कूल था, वहाँ पर हमने मीटिंग की कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम. तब आप जब स्कूल में बैठते हो, जहाँ बैठ के पंचायत से मिलते हो, बात करते हो, यू रियलाइज ओके देयर इज सच अ प्रॉब्लम इन द एजुकेशन पार्ट आल्सो. इट्स नॉट जस्ट द गवर्नमेंट प्रॉब्लम, इट इज आल्सो प्रॉब्लम फ्रॉम द स्टूडेंट्स और पेरेंट्स साइड आल्सो. बिकॉज कभी कभी ऐसा भी देखा गया कि टीचर्स आ नहीं रहे हैं, ठीक है, पढ़ाने, बच्चे उतने एंगेज नहीं फील कर रहे हैं. Content issue भी कंटेंट तो है ही है, तो बट एंगेजिंग Education is there but lack of quality एजुकेशन इज Quality education. एंड जो टीचर्स हैं वो एंगेज ही नहीं कर पा रहे हैं बच्चों को. मतलब
आई लाइक यू मस्ट बी हैविंग, एक तो सब्जेक्ट होगा जो बिल्कुल पसंद नहीं होगा स्कूल में, ठीक है ना, सबका होता है राइट। तो वो जो चीज है उसको अगर आप एक टेक्नोलॉजी, एक वीडियो या उसको एक गेम के फॉर्मेट में अगर आप पढ़ाओगे तो बच्चा उसके साथ एंगेज हो जाता है। उसका रिटेंशन शायद उतना नहीं होगा बट वो उसको फन फील करेगा, एंगेजिंग करेगा। So our idea was to engage the students into the learning process, number one. Number two is that हमने 2017 में जब शुरू किया था तब हमने कहा था कि बच्चे के अंदर एक स्किल होनी चाहिए। अगर हम अपनी CBSE या पंजाब बोर्ड या जो भी हैं बोर्ड्स, उनका करिकुलम उठा के देखते हैं तो व्हाट इज इट दे डू, वो करते क्या है, वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और हमारा एप्टीट्यूड बढ़ाते हैं। जैसे आजकल के बच्चे पूछने लग गए हैं कि हम ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़े, कभी यूज नहीं होती है। वो आपको यूज करने के लिए पढ़ाई भी नहीं जा रही है, वो आपको पढ़ाई जा रही है कि आपका एप्टीट्यूड जो लेवल है वो अच्छा हो जाए और इन फ्यूचर जाके जैसे अभी आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हो उसमें आप यूज कर सको, उसको पास कर सको, राइट। सो ये जो चीजें होती हैं ये स्किल डेवलपमेंट है और क्रिटिकल थिंकिंग बच्चे के अंदर डेवलप करती है, स्किल्स होती हैं जो लाइफ में रिक्वायर्ड होती हैं हम लोगों को। बट अब क्या हो गया कि इन पास्ट अ डेकेड और 15 इयर्स से ये सब चीजें खत्म होती जा रही हैं, राउट लर्निंग हो रही है, रट्टा मारो पेपर दो पास हो। और जैसे बच्चा स्कूल से पास करता है उसको ये भी नहीं याद होता कि मेरे को अगर एप्लीकेशन लिखनी है वो कैसे लिखनी है। सो वो क्यों नहीं है, बिकॉज उसके अंदर कभी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लैंग्वेज स्किल्स, सोशलाइजेशन स्किल्स डेवलप ही नहीं हो रही है उसके अंदर। Because sometimes it kills the creativity of the child. Exactly, it kills the creativity. And I'm not talking about good schools. See, good schools do, they put lot of effort. I'm talking about schools which are there in tier 2, 3, वहाँ पर जो schools अच्छे हैं, जो शहरों में, वो तो बहुत effort कर रहे हैं बच्चों और वहाँ से बच्चा अच्छा भी निकलता है। लेकिन जो थोड़े से tier 3, अगर हम लोग मेजर पॉपुलेशन लाइक्स इन द रूरल एरिया, राइट, रूरल एरियाज को कोई फोकस नहीं करता है जनरली। बहुत बड़े बड़े सब बोल देंगे हाँ वी आर अ यूनिकॉर्न, राइट, पर वो उस सेगमेंट को फोकस नहीं करते हैं बिकॉज वो सेगमेंट पेइंग कैपेसिटी नहीं है, उसके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है, तो वो कभी टारगेट ऑडियंस बनती भी नहीं है। सो आई फील कि वहां से अगर आप अपनी क्या कहते हैं कुछ भी उनको आप सर्विस ऐसी दे सकते हो at a very minimum cost, their budget, within their budget, quality education, quality affordable pricing, yes. The it's a huge thing, a massive market भी huge है, market बहुत massive है। So that is the gap you are trying to solve, that quality education at affordable price. At affordable price. The data is 1.26 million schools. नहीं, it is 1.2 million. That is 12 lakh schools just in the tier 2 and there is a huge gap in the market. Rural areas which across is India. untapped market. So this is the number. So 12 lakh schools, and 12 lakh schools is a lot of very big number. And this does not include the government schools. The government school and Kendra Vidyalayas are very different from these schools. तो ये schools के अंदर बहुत सारा काम required है और हो भी सकता है। So I think we are giving now, like Rajiv said, कि we are now giving an end-to-end solution. किसी को because pandemic आ गया, pandemic के बाद हमने काफी सारे नए इनोवेशंस भी की, जैसे कि स्कूल ERP मैनेजमेंट होते हैं वो भी हमने देने शुरू किए। LMS हमारा था ही पहले, फिर हम कंटेंट, अब हमारा गेमिफाइड कंटेंट जो है वो हम दे रहे हैं। फिर अभी मोस्ट रिसेंटली इन द मंथ ऑफ जुलाई वी लॉन्च्ड एन एप्लीकेशन व्हिच इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर आल्सो फॉर स्मॉल किड्स। वो बच्चों को ABC वगैरह ट्रेस करके सब फोन पे होता है उसको, दैट इज टोटली फ्री, हम बिल्कुल फ्री में दे चार्ज। I also want to say that totally free. Download the Kidly app. Kidly app तो उसको टैब स्कूल Kidly लिखोगे गूगल प्ले स्टोर पे तो आप डाउनलोड कर सकते हो। This is a very interactive content, मतलब स्मॉल बच्चे डाउनलोड करें, इंटरेक्टिव कंटेंट लर्न करें, उनकी स्किल इंप्रूव होएगी, है ना। घर बैठे आपको कोई बड़े प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी कंपनीज दे रही है, सो आप इसको डाउनलोड करो, फ्री सब्सक्रिप्शन है और यूज करो। दैट्स अमेजिंग सर। सर अभी तक आप B2B सेगमेंट पे फोकस कर रहे थे, इनिशियली यू आर मूविंग टुवर्ड्स B2C सेगमेंट। यस यस। So sir, currently AI and machine learning at its peak. So how are you involving machine learning, artificial intelligence in your course programs or in your startup?
सो अभी जो हमारा प्रोडक्ट था वो मोर और लेस डेटा ड्रिवन था, मतलब हम स्टूडेंट्स का डेटा टीचर्स को देते थे, मतलब बच्चे ने कितनी वीडियो देखी, बच्चे ने कितना टेस्ट किया। अब हम एआई जो अभी इन्वॉल्व कर रहे हैं वो हम टीचर के एंड से इन्वॉल्व कर रहे हैं, दैट टीचर कैन क्रिएट देयर ओन कंटेंट, बिकॉज हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये रियलाइज किया कि टीचर इज इंटरेस्टेड इन यूजिंग द टूल, लेकिन एलएमएस जैसी कोई चीज उसके लिए जबकि कन्वीनियंट होनी चाहिए वो एक अब प्रॉब्लम बनती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो कंटेंट बनाने की जो है वो टूल्स नहीं अवेलेबल। सो उस केस में अब आपको पता है जैसे चैट जीटीपी हैज कम इनटू प्लेस, राइट? तो वो यूज करके आप अदर प्लेटफॉर्म्स यूज करके उनके लिए टूल्स क्रिएट कर सकते हो ताकि वो इमेज जनरेट कर सके या कोई वीडियो जनरेट कर सके एंड ऑब्वियसली स्क्रिप्ट भी लिख सके। तो ये सब चीजें जो है हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फॉर द टीचर्स। आई एम जस्ट यूजिंग द एआई फॉर दैट। As far as machine learning is concerned, I think इंडिया में machine learning और student behavior patterns को study करने में भी थोड़ा टाइम है, जिस सेगमेंट को एटलीस्ट हम टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज उस सेगमेंट को अभी ये भी नहीं पता है कि टेक्नोलॉजी एजुकेशन में कैसे यूज करनी है। बिकॉज आई हैव अ क्लाइंट बेस्ड इन रायपुर, ठीक है, तो वहां पर बच्चों को सिर्फ पता है कि टेक्नोलॉजी के साथ गेम्स खेलते हैं, एजुकेशन नहीं करते हैं, राइट? सो ऐसी ऑडियंस का एक एवोल्यूशन है और वो धीरे धीरे एवोल्यूट करके वो धीरे धीरे आई थिंक ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5-6 ईयर्स वो धीरे धीरे आ जाएंगे टेक्नोलॉजी पे, बट अभी थोड़ा टाइम लगेगा। इंडिया में इन रूरल एरियाज एंड इन टियर 3 सिटीज आई थिंक थोड़ा सा टाइम लगेगा, नो डाउट। बाकी अर्बन एरियाज में काफी यूज भी हो रहा है, एआई भी यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर में भी एमएल यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट I think अब TVs जो इतने भी सॉफ्टवेयर Recently I seen my brother using an app Photomath. So क्या कर रहा था वो QR कोड से बस क्वेश्चन स्कैन करता था और उसका सोल्यूशन आ जाता था। हाँ, तो that is the use of AI in education. हाँ, but then again इसमें ये भी है कि अगर वो सोल्यूशन निकाल के दे रहा है, how is the child is learning? Yes, yes. अगर हम AI के या मशीन लर्निंग के यूज करके बच्चों से सोल्यूशंस ही दे रहे हैं, सो व्हाट अगेन वही क्वेश्चन आ जाता है कि क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कहाँ जाएगी? वहां पर एआई ने टेक ओवर कर लिया। सो वी हैव टू यूज एआई एंड मशीन लर्निंग मोर रिस्पांसिबली इन द एजुकेशन सेक्टर, आई विल। हाँ बिल्कुल। सर जैसे आपने बताया कि अब रूरल एरियाज, टायर 1, टायर 2 सिटीज को टारगेट कर रहे हैं, वहां पर जो टीचर्स हैं उनकी मेंटेलिटी अभी भी क्या है कि ऑनलाइन एजुकेशन हमें रिप्लेस ना करे, मतलब दे आर रेजिस्टेंस टू द चेंज दैट इज हैपनिंग इन द एजुकेशन सेक्टर। सो उनको किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है कि इट इज नॉट दैट बांधक नहीं है, ये सहायक है, इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग यू। तो हाउ कैन यू चेंज दैट? यू वांट टू आंसर? यू कैन। एक्चुअली इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा सा चेंज अब हो गया मेंटालिटी में, बिकॉज आफ्टर कोविड मैक्सिमम स्कूल्स ने क्लासेस ऑनलाइन की, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स ने भी, जिनको कभी पता भी नहीं था क्या है कि मोबाइल पे भी क्लास लग सकती है, क्योंकि गूगल क्लासरूम वाज गिविंग द प्लेटफॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट। सो जितने गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सब ने क्लासेस लगाई। इवन अभी भी रिसेंटली भी कोई एक इंसिडेंस हुआ था, तो 1 मंथ के लिए जब कुछ हॉलीडेज एक्सटेंड हुई उसमें भी उन्होंने स्कूल्स में कर दिया कि आप क्लासेस ऑनलाइन करो, है ना। तो अब ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा मेंटालिटी चेंज हो गई है गवर्नमेंट स्कूल्स की, क्योंकि हमारे पास जो भी डाटाबेस आ रहा है, क्वेरीज आ रही है ना, जो हम लोग अपनी एड्स चला रहे हैं वो मतलब रूरल एरिया से ज़्यादा आ रही है, साउथ साइड से आ रही है, यूपी बिहार से आ रहे हैं। हमारे पास स्कूल्स जो अभी ऑन बोर्ड हैं वो तकरीबन नॉर्थ से कम है, हमारे साउथ से ज़्यादा है। तो वो एक स्टैंड ऑफ मतलब कि काइंड ऑफ बिहेवियर चेंज हुआ है गवर्नमेंट स्कूल में। दे नो कि अब जो ये बिहेवियर है इसके कारण इस स्कूल की एजुकेशन इंप्रूव हो रही है, कम नहीं हो रही, हमारी रोजी जा नहीं रही है बल्कि बढ़ रही है। तो स्कूल को नीड तो है। अब मैटर ऑफ क्वेश्चन है कि बजट, अब क्या हो कि वहाँ पे प्रॉब्लम बजट की तो आ ही रही है। बजट मीन्स दे नीड कि हम वो स्पेंडिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि जो अदर कंपनीज है वो 2 to 3 लाख रुपीस भी ले रही है ईयरली। तो हम लोगों ने वो बजट फ्रेंडली भी बनाया, उनके लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी बनाया कि उनको वो ले सके। ठीक है, हम लोग कोशिश करें भी उनको एक सर्विस दें, उसको यूज करें, उनको समझ आए कि इसकी नीड कितनी है, इंटरेक्टिव कंटेंट की कितनी नीड है, बच्चों के रिजल्ट में कितना फर्क आ रहा है। और कई जगह तो आ भी रहा है, रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। मतलब वो स्कूल्स के प्रिंसिपल्स के हमारे टेस्टिमोनियल्स अब यूट्यूब में देखो, स्कूल्स के प्रिंसिपल खुद कह रहे हैं कि इसमें रिजल्ट में बहुत फर्क आ रहा है, हमारा रिजल्ट इंप्रूव हो गया है। तो वो आउटपुट अच्छी हो रही है,
तो बच्चों की एडमिशंस इंक्रीज हो रही है। इवन हमारे पास एक मिनिस्टर्स का अप्रोच आई थी, नाम नहीं लेंगे उनका, तो वो मिनिस्टर्स ने 200 स्कूल्स के लिए हमारे साथ टाइप किया कि हम 200 स्कूल्स को हम लोग ऑन फ्री कॉस्ट बेसिस, गवर्नमेंट बियर करेगी कॉस्ट, हम सबको अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म देंगे, ठीक है, आप हमें सारी सर्विस सपोर्ट दो, आप अपनी कॉस्ट दो। उसमें उन्होंने 2 स्कूल 3 स्कूल टेस्टिंग के लिए भी शुरू किए हैं, तो 200 के 200 स्कूल्स कहते हैं हम शुरू करवा देंगे ऑर्डर गवर्नमेंट फंडिंग, क्योंकि स्कूल्स के पास बजट नहीं है, गवर्नमेंट ही फंड करती है, सभी टीचर्स की सैलरी तो गवर्नमेंट देती है। तो ऐसे करके अब नीड वो समझ आ रही है और उनको भी ये लग रहा है कि एजुकेशन एक बहुत बड़ा एरिया जिसमें काम करने वाला है। ये तो आप भी मानते हो कि पंजाब में गवर्नमेंट की जो आई सबसे बड़ा मुद्दा एक ही था कि दिल्ली जैसे एजुकेशन सिस्टम हमने पंजाब में लगाना है, मॉडल स्कूल। अगर वो उस मॉडल पर उसके उसी एक मुद्दे पे मेजर मुद्दा जो मैं कहता हूँ मोर देन 50% मुद्दा यही था, फ्री एजुकेशन या फ्री इलेक्ट्रिसिटी वाला मुद्दा तो बहुत बाद में है। एजुकेशन के ऊपर, क्योंकि हर जो आज रूरल एरिया में चले जाओ ना सर, आप जो एग्रीकल्चरिस्ट बैठा है, किसान बैठा है, उसको सबसे ज्यादा पंजाब में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि बच्चे बाहर जा रहे हैं। पंजाब का 80% 90% बच्चे इमिग्रेशन होके कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अब उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम नहीं अच्छा, वहां पे उसको स्किल एजुकेशन नहीं मिल रही, वो करेगा क्या? मेरे पास खुद आते हैं, वो कहते हैं जी बच्चे को कराएं क्या? अब वो कर भी लेगा, चलो आप अच्छा उसको कोई जॉब नहीं है, क्योंकि वो अपने आप बिजनेस करने लायक नहीं बन पा रहा। अब वो कहते हैं हमने खेती बाड़ी में तो डालना नहीं, तो बच्चे को कुछ ऐसा करवाएं वी नीड टू कि वो बाहर जाके सेटल हो जाए। तो उनको वो एक फोकस ऐसा मतलब माइंडसेट बन चुका है कि वो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। एटलीस्ट पंजाब में तो सबसे पहले शुरुआत होनी चाहिए इस चीज की कि एजुकेशन को चेंज करें, सिस्टम को अच्छा बनाए, रूट लेवल पे काम करें, ताकि वो रूट लेवल से हमारी एजुकेशन में उसका इंटरेस्ट बने, बच्चे टॉपर्स निकले, बड़े बड़े उस पे जाए, पोजीशंस पे आए, कंपनी यहाँ पे आए, उनको हायर करें, यहीं पे इंडस्ट्रीज लगे। तो वो ओवरऑल मतलब मैं कहता हूँ ये हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एजुकेशन। अगर ये ठीक होगी ना सर, मैं तो कहता हूँ सारे सिस्टम ठीक हो जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम इज मतलब हर चीज की हल है, और मैं तो शुरू से मानता हूँ, ये मैं तो कई बार डिस्कस किए, एजुकेशन तो मतलब अगर आप एजुकेशन सिस्टम ठीक कर दो ना जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। Yes, definitely. हर चीज ठीक हो सकती है, आपकी गवर्नमेंट सर्विसेज अच्छी हो जाएगी, आपकी डिलीवरी अच्छी हो जाएगी, इंडस्ट्रीज अच्छी चलेंगी, कंट्री ग्रो करेगी, बच्चों का टैलेंट निकल के आएगा, बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे हायरिंग करेंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज में अभी भी टॉप पोजीशन में हमारी कंट्री के लोग हैं, पर मैक्सिमम वो साउथ से हैं, ठीक है, तो यहाँ से भी निकल सकता है। नॉर्थ में टैलेंट का बहुत फेमस कोट भी है कि किसी भी कंट्री का फ्यूचर देखना है तो देखो कि उसका यूथ कैसा काम कर रहा है, इसकी एजुकेशन कैसी है, तो वही कंट्री का फ्यूचर डिसाइड करेगा। हमारे आने वाली पीढ़ी इन पे डिपेंड करती है कि आज बच्चा जो स्कूल में जा रहा है, ठीक है, वो बच्चा उसमें मजबूरी से जा रहा है, खुश होकर जा रहा है, उसका इंटरेस्ट कितना है, पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन कितनी है ना, टीचर्स की पार्टिसिपेशन कितनी है, गवर्नमेंट का फोकस कितना है। अब क्या हो रहा है, मैं जो एक्चुअली मैं पर्सनली फील करता हूँ, गवर्नमेंट स्कूल्स ना इस मामले में बहुत ही दयनीय हालत में है, मतलब दे आर वेरी इन बैड शेप बिकॉज दे हैव ह्यूज लैंड बैंक, अच्छी लैंड है, बहुत बड़ी, इतनी लैंड्स पड़ी हैं, जिसका मतलब आप ये लगाओ कि प्राइवेट स्कूल होता है उस जगह पे ना, तो शायद वो 3-4 स्कूल होते हैं एक स्कूल की जगह। और प्राइवेट स्कूल की जो फीस है एवरी ईयर 10% 8% इंक्रीज हो रही है, और आप ये लगाओ कि एक नॉर्मल स्कूल ना, अच्छा स्कूल, प्राइवेट स्कूल, एक बच्चे का 1 लाख रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं, कॉस्टिंग है 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख, दे आर गेटिंग सो मच मनी, और पेरेंट्स स्पेंड करना चाहते हैं बिकॉज उनको पता है जो हमारा फ्यूचर है बच्चों का है, बच्चे इज अवर फ्यूचर, और बच्चों पे स्पेंड अभी करेंगे तो बच्चे आगे जाके हमारा फ्यूचर बनेंगे, है ना। तो पेरेंट्स स्पेंड करना चाहते हैं, क्यों हम गवर्नमेंट स्कूल्स की मेंटालिटी क्यों नहीं बदल सकते? हम गवर्नमेंट स्कूल्स कितना लैंड है, उसको लैंड को अच्छा बनाए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही देख लो, किसी स्कूल में चलो शायद 25 साल तक तो पेंट ही नहीं होता होगा, है ना, वहाँ पे बच्चा क्यों पढ़ेगा क्लासरूम में? वो ऐसा इंटरेक्टिव माहौल ही नहीं है। डिजिटल बोर्ड्स लगवाएं, क्लास में डिजिटल बोर्ड्स हों, कंटेंट अच्छा हो, डिजिटल टूल्स हों, मोबाइल तो आजकल सबके पास है, कौन सा ऐसा बच्चा है गवर्नमेंट स्कूल में जिसके पेरेंट्स के पास मोबाइल नहीं है ना, या कोई टैब नहीं है, उनको वो उसमें सिस्टम दें कि इस पे जाओ क्लासरूम करो, जैसे गूगल क्लासरूम ने किया, होमवर्क लो, उसको चेक करो, एक शेड्यूल हो, टाइमलाइन फिक्स हो कि ये काम इतने दिन में होना चाहिए। उससे रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की भी बन जाएगी कि ये काम दिया था 3 दिन में नहीं हुआ, इसकी रिपोर्ट बनेगी, गवर्नमेंट को जाएगी कि हमने क्यों नहीं चेक किया फिर, और उसको रिपोर्ट क्यों नहीं किया, है ना, ये होमवर्क दिया आपने किया नहीं। आई थिंक बहुत कुछ हो सकता है। एक्चुअली जो सबसे बड़ी बात है कि हम टीचर की हैंड होल्डिंग बहुत करते हैं। सी जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी जो है कौन इम्प्लीमेंट करता है? स्कूल ओनर तो बोल देगा मैं ले लेता हूँ, प्रिंसिपल बोल देगी ठीक है, पर एट द एंड ऑफ द डे इट इज द टीचर जिसने इम्प्लीमेंट करना। तो टीचर को ट्रेनिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ एक हमारा यूएसपी आता है
कि बहुत सारी कंपनीज ट्रेनिंग नहीं दे पाती हैं, और अगर देती हैं तो ऑनलाइन दे देती हैं। तो हम लोग जहां हमारे पास रहता है अप्रोचेबिलिटी, वी गिव इट एन ऑफलाइन। हैंड होल्डिंग इशू है सर, हैंड होल्डिंग इशू है सब जगह है, और और कॉम्पिटिटर्स हैं वो हैंड होल्डिंग नहीं करवा पा रहे हैं। और मेन इम्प्लीमेंट, और जब हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं तो हम ये बोलते हैं, जब आप इनोवेशन की बात करते हो राइट, तो आप सिर्फ टेक्नोलॉजी में इनोवेशन मत ढूंढो, आप इनोवेशन क्लासरूम टीचिंग में भी ढूंढो, कि आप बच्चे को कैसे एंगेज कर सकते हो। सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड फ्लिप्ड क्लासरूम, आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर और नॉट। सो ये फ्लिप्ड क्लासरूम 2008 में मिस्टर जॉनथन बर्कमैन है, जो कि टेक्सास में, ह्यूस्टन में, ही इज द पर्सन। उनके वो केमिस्ट्री टीचर थे, उनके बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आते थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो टीचर जो खुद पढ़ाते थे क्लासरूम में लिख कर ब्लैक बोर्ड पे, वो उन्होंने इन द फॉर्मेट ऑफ मल्टीमीडिया बच्चों को घर के लिए दे दिया, कि आप घर जाओ, इसको देखो, पढ़ो, जो मन में डाउट आए वो कॉपी में लिख कर लेके आना। और नेक्स्ट डे वो क्या करते थे, उनके डाउट क्लियर करते थे, एक्सपेरिमेंट्स करते थे, असाइनमेंट्स करते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने टर्म कॉइन की इन्वेंट की, दैट इज फ्लिप क्लासरूम। फ्लिप मींस आपका क्लास वर्क होमवर्क बन गया, और आपका होमवर्क जो है वो क्लास वर्क बन गया, तो आपने फ्लिप कर दी क्लासरूम। तो उससे उन्होंने अराउंड 40% जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस इनहांस की। एंड टुडे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कूल्स जो हैं वो इसी मॉडल पे वहां पर चल रहे हैं, तो सारे सब्जेक्ट्स में। सो आई थिंक इनोवेशन एवरीवेयर इज रिक्वायर्ड इन दी adopting new tools, in the क्या कहते हैं innovation for teachers also। तो ये जो tools हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड में नहीं आप टीच कर सकते, थोड़ा सा आप को खुद को भी इनोवेटिव होना पड़ता है। तो आई थिंक ये हमारी यूएसपी है कि हम टीचर्स को ऐसे मेथोडोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराते हैं जहां उनको पता भी खुद नहीं, भी कर सकते हैं, वो उनको मालूम नहीं होता, वो चाहते हैं। कई बार तो मैंने ऐसे भी देखा है कि टीचर्स और मैनेजमेंट चाहते हैं रूल एरियाज में से कि हम कुछ करें बच्चों के लिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। सो आई थिंक वी कम इनटू पिक्चर फॉर दैट, कि आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। तो इसलिए फिर नई नई मेथोडोलॉजीज अडॉप्ट करते हैं। 2015 में जब स्टार्टअप इंडिया लॉन्च हुआ, उसके बाद देश में एक स्टार्टअप वेव चल गई और अब एक स्टार्टअप रेवोल्यूशन आ चुका है, और इसी में एडटेक कंपनीज मेजरली ग्रो हुई। हम वेदांतु देख सकते हैं, अनअकैडमी देख सकते हैं, बायजूस देख सकते हैं, और रिसेंटली फिजिक्स वाला जो कि इंडिया का एक यूनिकॉर्न बना एंड प्रॉफिटेबल एडटेक कंपनी है। तो अगले 10 साल में आप एजुकेशन इंडस्ट्री, ऑनलाइन एजुकेशन इंडस्ट्री को किस तरह ग्रो होते देखना चाहते हैं अपनी कंट्री इंडिया में? अगर हम ऑनलाइन एजुकेशन को देखते हैं, बात करते हैं, तो अगर आप हिस्टोरिकली उठाओगे तो एजुकेशन इज डायरेक्टली लिंक्ड विद इकोनॉमी। ठीक है, अगर हम आज से 200-300 साल पहले पीछे जाएंगे तो व्हाई एजुकेशन सिस्टम केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये पता होना चाहिए। ये इसलिए आया था क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में उनको एक वर्कर्स चाहिए थे, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए थे, जो रीड कर सकें, राइट, then they can calculate and they can look up to a certain authority, कि वो जो अथॉरिटी को मान सके। तो आई थिंक उस टाइम से लेके अब तक नो डाउट एजुकेशन का जो हमारी है एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी इवॉल्व हो गया, उसमें काफ़ी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी, स्पोर्ट्स, अदर साइंसेज लाइक सोशल स्टडीज एंड ये सब हमने इंट्रोड्यूस किया। लेकिन मोर एंड मोर जो एजुकेशन है ये ऑनलाइन की तरफ ही जाएगा। रीजन उसका ये है क्योंकि आज की डेट में गिग इकोनॉमी आने वाली, जो आपने शायद सुना भी होगा, इलन मस्क जो है उन्होंने बोला कि आगे गिग इकोनॉमी होगी, और उसका कुछ छोटी सी झलक हमने कोविड के टाइम देखी भी है। गिग इकोनॉमी का मतलब ये है कि आप दुनिया में कहीं पे भी बैठे हो, ठीक है, आप एक कंपनी के साथ काम कर रहे हो, और वो कंपनी आपको परमानेंट पेरोल पे नहीं रखेगी, उसने प्रोजेक्ट के लिए हायर किया है, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, आप फायर कर दिए जाओगे। अगर आपकी जरूरत होगी तो आप नेक्स्ट पे हो जाओगे, नहीं होगी तो नहीं जाओगे। That's what we call in business network structure. हाँ, सो गिग इकोनॉमी। तो गिग इकोनॉमी में आपको सेल्फ मोटिवेशन होनी जरूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन होना जरूरी है, आप टैलेंटेड होने जरूरी हो, आपकी जो भी टेक्निकल या स्किल है वो उसके अंदर आप एकदम मास्टरी होनी चाहिए,
और ये तब तक नहीं आएंगी आपके पास जब तक आपके पास खुद के पास क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज स्किल्स, ये सब आप अलोन हो, आपके पास कोई टीम भी नहीं है जिसके भरोसे आप बोल दो कि हाँ मैं ये पूरी टीम है, अगर मैं काम नहीं करता हूँ तो चलो आई विल स्टिल ग्रो. So I think online education will go ahead in sense कि बहुत लोग skill based courses and developing of certain skills की तरफ बहुत ज़्यादा लोग जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी जा रही है, इवन अगर आप उठा लो आज के न्यूज़पेपर आप देख रहे हो कि कनाडा में रिसेशन चल रहा है और यूके में प्राइसेस हाई हो गए हैं, इन्फ्लेशन ऊपर जा रहा है. तो आई डोंट थिंक सो आने वाले टाइम में जो कंपनीज हैं दे वुड लाइक वेरी एक्सपेंसिव रिसोर्सेज ऑन देयर पेरोल्स आल्सो. तो आई थिंक ये जो आपका जो ऑनलाइन सवाल है वो इकोनॉमी के साथ ज्यादा जुड़ा हुआ है कि अब आगे कैसे बढ़ना है. जो स्किल बेस्ड लर्निंग आप अभी वाइटेड जूनियर के एग्जांपल ले लो, अब ये देखो कि बच्चे को अभी करिकुलम भी समझ नहीं आ रहा, दे आर स्टार्टेड लर्निंग कोडिंग कि पाइथन कैसे लर्न करना है, वो छोटे छोटे कोर्सेज बनाए, बच्चों को स्किल के ऊपर वो काम करना शुरू कर दिए है. बहुत कंपनीज अभी उस स्किल पे फोकस कर रही है कि आने वाले टाइम में उसको बेसिक पता हो, वो 10th +2 पास करेगा, जैसे कोई कोर्स में आएगा वो बीटेक में जाएगा, बीएससी में जाएगा, चाहे वो कॉमर्स में लॉ में जाएगा, पर उसको बेसिक पता हो, ताकि अगर अपने को पता हो आप किसी से करवा तो पाओगे कि दीज आर लैंग्वेजेस ऐसे काम करती हैं. तो छोटी छोटी चीज़ों पे काम हो रहा है, हर एक की चीज़ों पे नीड समझ आ रही है, बच्चे ले भी रहे हैं, पेरेंट्स स्पेंड भी कर रहे हैं. आप फ्रेंच लैंग्वेज सीख लो, कोई आइल्स कर लो, आप ऑनलाइन कोडिंग सीख लो, है ना, लैंग्वेज सीखो किसी टाइप की, कोई आपको म्यूजिक सीखना है, कोई आपको ड्राइविंग सीखनी है, कोई योगा सीखना है. आप देखो कि स्किल्ड वर्कर्स की इतनी बड़ी फोर्स खड़ी हो गई है, और अब ऐसा हो गया कि स्किल्ड एजुकेशन डोमिनेट कर रही है जो नॉर्मल एजुकेशन को. आप कहीं भी प्लेटफॉर्म पे चल जाओ, स्किल एजुकेशन की डिमांड बढ़ती जा रही है. आप घर बैठे, मुझे शौक होता है कि कई बार मैं डिजिटल मार्केटिंग सीखूं, मैं उस पर बैठे बैठे स्पेंड कर देता हूँ, चाहे उसका मुझे फुल फ्लेज नहीं समझ आएगा, पर वो चीज़ सीख रहे हैं हम. हमारी क्योंकि फील्ड नहीं थी टेक्नोलॉजी, तो हम उसको भी समझ रहे हैं. तो ऐसा नहीं है कि जो जिस फील्ड का पर्सन है वो उसी को सीख रहा है. अगर लॉ वाला पर्सन लॉ सीख रहा है ना, नॉन फाइनेंस वाला पर्सन फाइनेंस सीखना चाह रहा है, क्योंकि उसको लगता है मैं फाइनेंस करूंगा, मुझे पता होगा कि मैं फाइनेंस देख रहा हूँ, है ना, कुछ तो पता हो. अब चीज़ों की नीड समझ आ रही है कि हम एजुकेशन सिस्टम जो हमारा चल रहा है उसमें ये चीज़ें सिखाई नहीं जा रही हैं कि हाउ टू गेट अ एंटरप्रेन्योर, हाउ उसमें क्या क्या चीज़ें आपने हैंडल करनी है, ऑपरेशन कैसे हैंडल करना है, मार्केटिंग कैसे हैंडल करनी है, फाइनेंस कैसे हैंडल करना है, सेल्स कैसे हैंडल करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है. अब जो ये चीज़ें स्किल्ड है ना, स्किल्ड एजुकेशन के ऊपर फोकस तो होगा ही होगा सर. आने वाले टाइम में मुझे लगता है ये 90% हो जाएगा. अब ये रहेगा कि लोग कहेंगे कि एजुकेशन तो कर ही लियो, आप साथ साथ स्किल्ड एजुकेशन पे फोकस करो, साथ साथ वोकेशनल कोर्स भी करो. सर इंडिया की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो यूथ है. I was reading a data that 80 crore people are below the age of 35 in India. So सबको तो जॉब्स नहीं दे सकती गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉय नहीं कर सकते. तो स्किल बेस्ड एजुकेशन ही एंटरप्रेन्योरशिप. मैं बताऊं, एक टाइम पे ऐसा हो गया था कि 10th के बाद +1 +2 में ऑप्शन होती थी साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, और फोर्थ ऑप्शन होती वोकेशनल. तो हम कई बार सोचते थे कि यार वोकेशनल वही ले रहा है जिसको कुछ आता नहीं है ना, जब मार्क्स बहुत कम है. अब मुझे लगता है ये उल्टा हो जाएगा. आने वाले टाइम में ये होगा कि सबसे नंबर 1 पे वोकेशनल कोर्स होंगे, लोग कहेंगे वोकेशनल में सीट नहीं मिल रही, और कॉमर्स एजुकेशन साइंस सबसे लास्ट चला जाएगा. आई थिंक इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन जो NEP 2020 नेशनल एजुकेशन वो भी यही है. अगर आप उनका कोर्स वेयर उठा के देखते हो तो उसमें आप देखोगे कि टेक्सटाइल डिजाइन, फैशन डिजाइन, रेफ्रिजरेशन, इलेक्ट्रिशियन के कोर्स. यू कैन स्टडी फिजिक्स along with the हाँ, मतलब 11th 12th में ये सब कोर्सेज साइंस करते करते मेकअप सीखो. तो ये इंट्रोड्यूस कर दिए उन्होंने. वो इसीलिए की हैं ताकि हम आई थिंक दे आर गोइंग ऑन टू ग्रास रूट, कि उनको पता है कि देयर आर सर्टेन एरियाज एंड विलेजेस जो इंडिया में है जहाँ कॉलेजेस नहीं है, ठीक है, तो वहाँ के बच्चे एम्प्लॉयबल भी होने चाहिए. तो इसलिए उन्होंने ये सब कोर्सेज इंट्रोड्यूस कर दिए हैं जो कि 11th एंड 12th में ही होंगे, ताकि बच्चे जब +2 से बाहर निकले, 12th करके बाहर आए, वो ग्रेजुएट करके आए, तो दे आर स्किल्ड, दे आर एम्प्लॉयबल. ठीक है ना, चाहे उन्होंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग का कोर्स किया है, चाहे उन्होंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, चाहे उन्होंने रेफ्रिजरेशन का काम किया है, इलेक्ट्रिशियन का कोर्स किया है, या उन्होंने क्या कहते हैं अपना कोई लैंग्वेज सीखी है, दे कैन बिकम ट्रांसलेटर्स आल्सो. अभी MSME स्कीम्स आई हैं कि जो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस है, अगर उनको स्किल्ड एजुकेशन आती है, कुछ नॉलेज है, अपना कुछ काम शुरू करें, अनसिक्योर्ड फंडिंग उठाएं, अपना काम शुरू करें, एम्प्लॉयमेंट दें लोगों को, है ना, गाँव के लोगों को. तो वो मुझे लगता है रूरल एरिया डेवलप होगा इससे उल्टा. तो रूरल एरिया में हमारा इंडिया बसता है. So sir, how has pandemic influenced the growth and development of the education sector worldwide?
Actually, it has impacted exponentially. Worldwide, yes. But at the same time, it was very shocking कि schools were never ready throughout world. ऐसा नहीं है. US में भी कुछ ऐसे schools थे जो ready नहीं थे कि भाई हम बच्चों को कैसे education देंगे. तो आई थिंक आफ्टर, जैसे सर ने पहले भी आपके सवाल का जवाब दिया कि आफ्टर पैंडेमिक देयर इज अ शिफ्ट कि अब थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना शुरू करते हैं. स्कूल्स बोलने लग गए कि शिफ्ट नॉट जस्ट इन दी अर्बन एरियाज, इन दी रूरल एरिया. हाँ, कुछ करना है. जो रेजिस्टेंस थी वो रुक गई, खत्म हो गई. वो खत्म. एक होता था ना कि वो हम बोले कि आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो, नहीं वो नहीं, डोंट नीड. हमारे टीचर्स हैं, पढ़ा रहे हैं, बात कर, बच्चे तो स्कूल में आके पढ़ेंगे. अब वो एक मेंटालिटी तो बदल गई है कि नहीं, बच्चों को ना साथ में एक सपोर्ट सिस्टम और भी चाहिए. कभी ऐसा कुछ आ जाए बाय चांस, महीना 2 महीना कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो एटलीस्ट वो हम उस सिस्टम में शिफ्ट कर सके कि 100% क्लासेस चल रही है ना. एजुकेशन सफर नहीं होगी तो गवर्नमेंट का भी फोकस है कि एजुकेशन सफर नहीं होनी चाहिए. तो वही है कि देयर इज बीन शिफ्ट. वो शिफ्ट जो है वो इट इज फॉर गुड. एंड जैसे कहते हैं जीनीज आउट ऑफ द बॉटल नाउ. तो वो जो शिफ्ट है, इम्पैक्ट तो डेफिनेटली देखो, अभी आपने खुद ही बताया कि इतनी सारी एडटेक कंपनीज, यू नो, यूनिकॉर्न्स बन गई एंड एवरीथिंग. बट एट द सेम टाइम इंडिया में ये भी है, एक और फैक्ट भी है, क्या हम लोग अपने चाहते नहीं हमारे बच्चे ऑनलाइन पढ़े. ठीक है, हम वी डोंट वांट देम टू स्पेंड एटलीस्ट जो उनके रेगुलर सब्जेक्ट्स हैं. बच्चे से पहले पेरेंट का माइंडसेट होना चाहिए कि बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है. तो वो उसके लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा. बट अदरवाइज द ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन हैज गॉन एक्सपोनेंशियली एंड इट इज एस्टिमेटेड कि और भी बढ़ेगी वर्ल्ड वाइड. लेकिन अभी इंडिया हैज टू स्टिल फिगर इट आउट कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ताकि ये टीचर्स और स्कूल्स के लिए बेनिफिट हो, स्टूडेंट के लिए भी हो, पेरेंट को भी लगे कि जो मेरा बच्चा है वो अननेसेसरीली स्क्रीन पे नहीं है. सो देयर आर स्टिल थिंग्स टू बी फिगर आउट. ठीक है, इट इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर इंडिया और कंट्रीज लाइक इंडिया. आई वुड से द सेम प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती होगी किसी अफ्रीकन कंट्री में, या हमारे जो नेबर्स है बांग्लादेश में या श्रीलंका में या नेपाल में, जहाँ यू नो देयर आर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज, वहाँ भी ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती होगी. But I think every country will soon or later will figure out something or the other. मुझे लगता है इसमें पेरेंट्स की जो काउंसलिंग बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, बिकॉज स्क्रीन टाइम यू कैन नॉट बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते आप स्क्रीन टाइम बच्चों को. बिकॉज स्क्रीन पे आप लैपटॉप लो, मोबाइल लो या टीवी लो, शॉर्ट वीडियोस लो, बच्चे मैक्सिमम टाइम आप स्पेंड कर रहे हैं. वो जो स्टडी है वो आप देखोगे, कई रिजल्ट्स आए हैं कि जो स्कूल के बाद का 80% टाइम लोग बच्चे स्क्रीन पे स्पेंड कर रहे हैं. तो बच्चों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो कि जो वो स्क्रीन टाइम वहां लगा रहे हैं उसको एटलीस्ट वो अपनी उस पे स्किल डेवलपमेंट पे लगाए, एजुकेशन की तरफ मूव करें, इंटरेक्टिव कर बनाए, गेम कंट्रोल करें, तो दैट लर्निंग एक्सपीरियंस शुड बी एनहांस्ड. उसको पता लगे गेम खेलने से मैं कुछ सीख रहा हूं. गेम खेलना इज, बहुत सारे लोग बोलते हैं गेम खेलना इज रॉन्ग. आई वुड से इट इज नो, इट इज एक्चुअली गुड. The reason is, but depend करता है गेम कौन सी खेल रहे हो, right? How long for are you getting addicted to it or and like for example, I know that जैसे Candy Crush है, yes, it is a very good game for a child, क्योंकि उसके अंदर क्रिटिकल एनालिटिकल स्किल आपकी डेवलप होती है. ठीक है, अगर आप एंग्री बर्ड्स खेल रहे हो तो वो भी आपकी स्किल डेवलप करती है, एक्टिवेट्स द ब्रेन सेल्स. हाँ, बट इफ यू आर प्लेइंग समथिंग लाइक PUBG और Fortnite और Snake, मतलब इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीवेज, बिकॉज़ वो जो गेम्स हैं, या लूडो गेम कह लो, वो इज नॉट गुड आई थिंक, because Ludo is also very good. Actually, it is very addictive. It is addictive, but it develops certain using the intellect mind. तो जो जैसे कि गेम्स हैं जहाँ पर Fortnite जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो कुछ गलत चीजें प्रमोट करती हैं, बुलिंग एंड दिस काइंड ऑफ बुलिंग को प्रमोट करती है. तो आई थिंक व्हाट काइंड ऑफ गेम योर चाइल्ड इज प्लेइंग इज आल्सो डिपेंड्स कि आप किस तरीके की गेम बच्चे को खिला रहे हो. तो गेम एक्चुअली में अच्छी चीज है, तभी आई थिंक मोर शिफ्ट जो है वो इसीलिए जा रहा है कि जो कंटेंट है वो गेमिफाइड कर दिया, कि अगर जो बच्चे सीख रहे हैं वही वो गेम बन जाए तो इट्स बेटर. तो सर जैसे आपने बताया कि आपका B2B मेजर फोकस है, तो हाउ डू यू कोलैबोरेट विद द स्कूल्स एंड द इंस्टीट्यूशंस?
How do we collaborate? It's simple. Actually, जब हम एक तो हमारा collaboration in sense we always ask for demands. There are demand of certain because thankfully हम लोगों को वैसे ही 15 इंक्वायरी डेली आ जाती है. That is something I proudly say that मेरे को 15 इंक्वायरीज दिन की आती नहीं. लेकिन उसके बाद जो प्रोसेस होता है कोलैबोरेशन का, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरा मानना है कि अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर रहे हो तो आप अगर किसी स्कूल का पेन पॉइंट नहीं सॉर्ट आउट कर रहे हो ना, तो वो आपका कस्टमर नहीं है. मतलब एटलीस्ट वो रिकरिंग कस्टमर नहीं है. ठीक है ना. हम तो वो आपका लॉयल कस्टमर भी नहीं बन रहा. तो उसका जो पॉइंट है, जो उसकी प्रॉब्लम है, उसको समझना बहुत जरूरी है. तो वहां से आई थिंक दैट इज द फर्स्ट स्टेप वेयर वी स्टार्ट फ्रॉम एंड देन वी टेक ऑन टू, बिकॉज अभी हम एंड टू एंड सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि जैसे अगर कुछ हमारे साथ कुछ कंपनीज ने कोलैबोरेट किया हुआ है जो IoT डिवाइसेस देते हैं, जहां अगर इंटरनेट इशू है तो हम क्या करते हैं, वो IoT डिवाइस के अंदर ही सॉफ्टवेयर डाल देते हैं एंड देन इट काइंड ऑफ कैंपस में रख दो तो वो सारी डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड हो जाता है. तो इस तरीके से व्हाट यू कॉल हम लोग कोलैबोरेट करते हैं. सो इट्स नॉट जस्ट कि हम अपना सोल्यूशन भी दे रहे हैं, बट जैसे जैसे कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे जैसे कोई रिक्वायरमेंट होती है, उसको भी हम फुलफिल करते हैं. तो सर फंडिंग एक स्टार्टअप के लिए बहुत क्रूशियल पार्ट होता है. तो करंटली आप बूटस्ट्रैप्ड हैं या कोई राउंड रेस कर चुके हैं? नहीं, वी आर बूटस्ट्रैप्ड एंड फंडिंग का आई थिंक बहुत टाइम तक मैं फंडिंग में बिलीव नहीं करता था. रीजन उसका क्या है, क्योंकि मेरे लिए जो people who I look up to are people who have never took funding and they made a very big company. आपने शायद Zoho का नाम सुना होगा. Zerodha is example. हाँ, so is one of my companies whom I take an inspiration. But ये भी बात सच है कि अगर आपने अपनी कंपनी को इंडिया में बहुत एक्सपोनेंशियली फास्ट ग्रो कराना है तो आपको फंडिंग की ज़रूरत है. और आई थिंक नाउ दैट वी हैव कम टू दिस स्टेज, तो हमको फंडिंग की ज़रूरत है और वी आर लुकिंग फॉर फंडिंग, whether it is government aided or whether it is from the private investors or venture capitalists. So we are looking for funding. ऐसा नहीं है. So this question is to both of you, that what is your final message to the young and aspiring entrepreneurs watching you out there who want to start something in the edtech segment or want to become an entrepreneur या startup शुरू करना चाहते हैं, उन्हें क्या मैसेज है, एक फाइनल मैसेज आप दोनों की तरफ से यंग एंटरप्रेन्योर्स को? I think the best thing is that you can do is two things. जब आप edtech या नॉर्मल स्टार्टअप भी शुरू कर रहे हो, एक बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में कॉन्फिडेंस, मतलब बहुत ही इनसेन अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड बिलीफ होना चाहिए. मतलब आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आप गलत कर रहे हो, कोई हंसेगा भी, कोई बोलेगा ऐसी बकवास मार रहा है. तो आपके वो अपने अंदर बिलीफ होना चाहिए. आपका आइडिया अच्छा हो या ना हो, दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग. सी आइडिया वैलिडेशन करानी बहुत जरूरी होती है, बट अपने अंदर बिलीव करना वो एक इनसेन लेवल का होना चाहिए. ठीक है ना. मतलब ऐसे होना चाहिए कि मेरे से ऊपर कोई बंदा नहीं है टाइप्स. एंड सेकंड थिंग आई वुड से कि यू शुड बी रेडी विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस. आपको ये नहीं होना चाहिए कि हाँ इतनी सी अगर कोई प्रॉब्लम आ गई वो ही सेम चीज होगी इन सेम अमाउंट ऑफ बिलीफ. वो होता है कि अगर आपने स्टार्टअप शुरू किया है आपको बहुत सारे चैलेंजेस मिलने वाले हैं एंड अगर गलती कर दी है फाइन, नॉट एन इशू. गलती सबसे होती है, लेकिन वो गलती दोबारा ना हो, वो आई थिंक इज द लर्निंग स्टेज फॉर दैट. और स्टार्टअप को स्टार्टअप की तरह ट्रीट करो, इन सेंस कि इसको बिजनेस की तरह मत ट्रीट करो, बिकॉज बहुत सारे डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप इज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट. तो अगर आप उसको बिजनेस की तरह ट्रीट करोगे तो फिर वो बिजनेसमैन ही है. फिर वो आप चाहे मैं कहूँगा कि इफ यू प्लानिंग टू ओपन अप बर्गर शॉप तो ठीक है, मैकडोनल्ड जैसे एक दूसरा खोल लो, आपका चल जाएगा. तो अगर स्टार्टअप को स्टार्टअप की तरह ट्रीट करो, दीज आर द थिंग्स दैट आई वुड से कि
एक बिलीफ सिस्टम और एक यू शुड बी रेडी टू फेस द चैलेंज, दैट्स द थिंग। व्हाट इज योर व्यू सर? एक्चुअली मैं भी यही कहना चाहूँगा सर कि बिलीव तो इज़ द फर्स्ट थिंग। कोई भी स्टार्टअप बिना बिलीव के चल नहीं सकता, बिकॉज देयर आर मैनी हार्डल्स मतलब इन लाइफ स्पैन ऑफ स्टार्टअप आते हैं। और स्टार्टअप का बड़ा एक नाम बड़ा पॉपुलर हो गया कि स्टार्टअप हर कोई बंदा कहता है जी मैं कोई शॉप खोल रहा हूँ, वो भी स्टार्टअप है, मैंने कोई फैक्ट्री लगाई, वो भी स्टार्टअप है। मेरा मानना है कि स्टार्टअप वो तब तक नहीं है जब तक आप उस पर कुछ स्केलेबिलिटी के ऑप्शन नहीं है ना। चाहे आप समोसा ही बेच रहे हो, अगर आप उस स्केलेबल कर सकते हो तो दैट इज आल्सो स्टार्टअप। इट्स नॉट है कि आप करेंडर शॉप खोले तो स्टार्टअप नहीं है। स्टार्टअप की कोई और डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ स्टार्टअप एक ही चीज़ से बनता है, अगर आप उसमें कोई आइडिया पे काम कर रहे हो और आपको लगता है बिलीव है इट्स स्केलेबल, तो वो स्केलेबल होगा, उस पर बिलीव रखो। बट ये भी जरूर है कि आपके इसमें हार्डल्स आएंगे, यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। आपको हर एक पिलर्स पे भी काम करना है, आपको टीम बिल्ड करनी पड़ेगी, बिकॉज सोलरली होलली कहते हैं यू कैन नॉट बिल्ड अ स्टार्टअप। वो स्टार्टअप वहीं पे बना रह जाएगा आइडियाज़, क्योंकि अश्विनी ग्रोवर कई बार कह चुके हैं इतने आइडियाज़ हैं हमारे यहाँ पे, वो आइडियाज़ डेली बनते हैं, डेली किल हो जाते हैं, बिकॉज वो उसके आगे बढ़ नहीं पाते, बिकॉज नो वैल्यू अनलेस इट इज एग्जीक्यूटेड। बिकॉज वो कॉन्फिडेंस एक्चुअली जब तक वो कॉन्फिडेंस आपको अपनी टीम पे नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस सामने वाले बंदे पे नहीं आएगा, आप दूसरे बंदे पे विश्वास नहीं कर पाओगे कि मैं उसको बना रहा हूँ, टीम में लेके आ रहा हूँ, तो मेरे को वो क्या वो मेरे साथ सीख चलेगा कि नहीं, बिकॉज इट्स टीम बिल्डिंग प्रोसेस। जब तक आप वो टीम अच्छी नहीं बनती, आपको सेल्स एरिया में काम करना पड़ेगा, तो आप अकेले नहीं कर सकते, मार्केटिंग पे नहीं कर सकते, ऑपरेशंस आप अकेले नहीं मैनेज कर सकते, फाइनेंस नहीं मैनेज कर सकते, आपको अपना ऑपरेशन मैनेजमेंट सब कुछ सिस्टम को एक लाइन पे लाना पड़ेगा। तो इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। पर मुझे लगता है स्टार्टअप ऐसा नहीं है कि आप आज स्टार्टअप शुरू कर दिया था आपको वो ये 6 महीने साल में मेरा स्टार्टअप बड़ा बन जाएगा। मतलब उसमें हर एक स्टेप पे आपको चीज़ों को रियलाइज करना पड़ेगा कि ये चीज़ें करनी है मुझे, ठीक है ना। उस अगर गलती है उसको ठीक भी करना है, इम्प्लीमेंट करना है, लर्निंग लेनी है। मेरे को तो ये लगता है कि एक स्टार्टअप को ना, कोई भी स्टार्टअप ले लो, एडटेक चाहे इवन फिनटेक, उसको मेंटरशिप जरूर लेनी चाहिए। अच्छे मेंटर्स के पास जाए, अच्छे मेंटर से मिले जो ऑलरेडी कोई अच्छे कुछ नाम बना चुके हैं या कुछ अच्छे लेवल पे गोइंग टू बी यूनिकॉर्न, बिग हैव यूनिकॉर्न। बिकॉज मुझे लगता है जो अच्छे यूनिकॉर्न स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, दे आर ईगरली वेटिंग टू कम समवन कि हमारे पास आए, हमसे पूछे, बिकॉज उनको खुशी मिलती है, बिकॉज दे डोंट नीड एनीथिंग। उनको चाहिए कि कोई हमारे पास आए, हमें उनको गाइडेंस मिले। गाइडेंस लेनी बहुत जरूरी है। आप स्टार्टअप में गाइडेंस लो, मेंटरशिप लो, राइट ट्रैक पे हो नहीं हो उसको ट्रैक को ठीक करो, फिर उस पर आप स्केलेबिलिटी पे काम करो। जब This is what we are also doing in this Gyan Nursing and helping the जब तक कोई youngsters. स्केलेबिलिटी नहीं है ना सर, वो आइडिया तो बिल्कुल हाँ, आपका स्टार्टअप नहीं scalability- है, it's a business, scalability- it's MSME business only. हाँ. If you are doing something ना, वो बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, ठीक it's है. good for your family. पर अगर आपको स्टार्टअप इकोसिस्टम में जुड़ना है ना सर, अगले 10 साल 15 साल इज वेरी गुड। वो ऑलरेडी सब जगह बोल रहे हैं जी बिजनेस पे बात कर लो, किसी से कोई भी प्लेटफॉर्म पे बात कर लो कि नेक्स्ट 10 to 15 years आई आल्सो बिलीव इवन आल्सो इन द शेयर मार्केट आल्सो, बिकॉज आप देखो कि वी आर नाउ हाई लाइफ टाइम हाई पे है शेयर मार्केट्स में, और अभी बातें हो रही है कि अगले 5 years में 1 लाख पे आ जाएंगे। तो आप ये सोचो कि ये सारी चीज़ इसलिए हो पा रही है बिकॉज वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमी आल्सो। जितने स्टार्टअप्स निकल रहे हैं ना सर, हमारी इकोनॉमी को डायरेक्टली दे आर डायरेक्टली हिटिंग टू इकोनॉमी एंड इकोनॉमी ग्रो हो रही है। तो अगर आपको इकोनॉमी को ग्रो करना है, गवर्नमेंट को सपोर्ट सिस्टम भी वैसा बनाना पड़ेगा, स्टार्टअप को अपने आप को भी रियलाइज करना पड़ेगा कि मैं स्टार्टअप हूँ भी कि नहीं। सिर्फ कंपनी फॉर्म करने से या मैं कोई बिजनेस खड़ा करने से स्टार्टअप नहीं बनने वाला, ठीक है। वो कहीं ना कहीं आपको रियलाइज होगा। कई बार उसमें ऐसा होता है कि 5-10 साल निकल चुके होते हैं, वो 10 साल 15 साल बाद रियलाइज करते हैं मैं तो कुछ और ही कर रहा था। मतलब वो एक थॉट ऑफ प्रोसेस अपने आप को कंसीडर करना, रीथिंक करना, वो ज़्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि कुछ भी काम करो उसको दोबारा से रीथिंक करो कि क्या मैं वो राइट ट्रैक पे हूँ, क्या वो स्केलेबिलिटी वाले पे हूँ, ठीक है। और हमारी ना इंडिया इज़ वन ऑफ द बिग कंट्री। आप ये लगाओ कि मैं तो अभी बात कर रहा था अभी आते हुए कि हमारे एक पंजाब जैसा स्टेट एक बड़ी बड़ी कंट्रियों के बराबर पॉपुलेशन है, ठीक है। तो वी हैव 140-150 करोड़ पीपल, कंज्यूमर बेस। हर एक कंज्यूमर जो है आज के डेट में हर एक के पास अच्छे अच्छे फोन्स हैं, डिजिटल फोन्स हैं। आप देखो भी एंड्रॉयड फोन्स हैं, एप्पल फोन्स हैं, कंजम्पशन पावर इज़ वेरी गुड। तो इससे बड़ी एक इन्वायरमेंट नहीं मिल सकता किसी स्टार्टअप को यहाँ पे अपना स्टार्टअप को स्केल करने के लिए। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहिए। 10 से 15 साल इज़ वेरी गुड। तो आप स्टार्टअप बनाओ, स्केल करो, और आई विश यू एवरीवन अ बेस्ट ऑफ लक। It was really great talking to both of you, sir. So all the best for your venture and hope you make it big and turn it to income. Definitely, it's a matter of It time. was really great to see that chartered accountants are also actively taking part Actually, in it is- I the think- ecosystem of startups. I feel that ki not only chartered accountant, even a salesperson, marketing person has a good role in the startup, and even a technology person is the backbone also.
and legal support system, because legal compliances, there are so many legal issues. Many startups are stuck in the legal issues because in legal system you if once you stuck in the legal system ना, you cannot grow, because आपका जो माइंड है फोकस वहाँ रहेगा कि कहाँ केस लड़ना है, कहाँ क्या करना है. तो इसलिए आपको हर एक टीम चाहिए. स्टार्टअप इकोसिस्टम इज नॉट अ वन मैन कंपनी. इसमें सिस्टम तो चाहिए. तो फाइनेंस पर्सन का तो रोल अपना है, ठीक है, बिकॉज हमारा अपना रोल होने से क्या होगा कि हम लोग एटलीस्ट उस प्लानिंग से चलेंगे कि हम अब कहीं ऐसा ना हो कि ट्रैक से भटक जाए, है ना. पता लगा लॉस मेकिंग कंपनी बन जाए, तो कोई भी इन्वेस्टर नहीं चाहेगा कि आप लॉस मेकिंग कंपनी बनो. तो हम लोग चाहते हैं हम हमेशा प्रॉफिटेबल कंपनी रहें, ठीक है. हम बूटस्ट्रैप पे हैं, तो आई रियली प्रॉमिस कि इट्स मैटर ऑफ टाइम वी विल बिकम अ $1 billion company. Hope your word turn true, sir. All the best. Definitely. Thank you so much, sir, for being with us on the Startup Show. Thank you. Once again. Thank you so much. Thank you for this year.